भी साइंस को रिलीजन के साथ में ये कंबाइन किए थे, इसलिए वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इसलिए वो कुटुंबकम, ये प्रिंसिपल्स को भी वो स्प्रेड किए थे। तो डॉक्टर टी.डी. सिंह थोडम दामोदर सिंह, बाद में इनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर कृष्ण महाराज। तो उनका आज 19 तिरुभाव तिथि है, विजयादशमी। उनका आविर्भाव हुआ था 1937 डिसेंबर 2006। 1937 में वो 59 दिसंबर 9 में उनका आविर्भाव हुआ था। डॉक्टर थोडेम दामोदर सिंह, पॉपुलर नोन एज हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी, Damodar Swami Sripad, was endorsed as a pioneer in the field of science and religion interface by eminent scientists and saints of the world. For the decades, he integrated with world leaders as a scientist, as a saint, as a philosopher, as an educationist, as a writer, as a singer, a poet, an instrumentalist, and वो खुद गाना भी अच्छा बजाते थे। मणिपुर का कल्चर में ये है कि वो लोग बहुत अच्छा वैष्णव कल्चर में वो बहुत अच्छा कि कल्चर था वहाँ पे। वैष्णविज्म जो आया था मणिपुर में, ये अर्जुन जो है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उस टाइम में राजा का बेटी थी चित्रंगदा, तो पहले तो उनसे उनका मैरिज हुआ था और उसके बाद में वहाँ पर उनका एक लिनियज वहीं पे हुए थे, तो इसलिए वैष्णव कल्चर वहाँ पे हुआ। एंड तो इसी कल्चर में बहुत अच्छा वैष्णव कल्चर है वहाँ पे। बाद में इसको सब डिस्टर्ब कर दिया गया, डिफरेंट इन्फ्लुएंस आया। तो ही विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड layers of disturbance during the most part of his life since his childhood days. Still was no disillusion about life, facing challenges at every phase. Instead of protesting against destiny, he perceived every situation thoughtfully, expressed gratitude to God, practiced humanness in demanding circumstances, worked very hard after taking appropriate guidance and blessings from his teachers, guardian, and revered Guru Srila Prabhupada. And finally, he became an accomplished scientist and a saint. He is both scientist and a saint. And finally, and was recognized as one of the most outstanding pillars in science spirituality interface dialogue for world peace. With a clear vision of uniting science and religion, he invested his life for a higher cause and took up the challenging responsibility to modern लोगों को रिलीजन का साथ में जोड़ने के लिए साइंस को, तो sympathize both domains to promote world peace. To his end, he felt the need to create a platform for the mutual dialogue among the scientists, academicians, and religious leaders to facilitate opportunity to learn from each other and thereby broaden their respective views on variety systems subjects relevant to mankind. The world wholeheartedly to promote world peace through multifarious action. As the director of Bhaktivedanta Institute, he organized major international conferences. बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रभुपाद बोले थे करने के लिए। इवन जिस साल प्रभुपाद शरीर त्याग किए थे उस दिन भी, उसी टाइम में भी ये महाराज ने वृंदावन में इस कॉन्फ्रेंस किए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। So he organized seminars, commenced and the annual Science and Spiritual Quest Conference series in India for students, Spiritual Quest Conference. Initiated discussions and dialogue sessions with some of the best minds of our time, including many Nobel laureates in science and peace, as well as notable statesmen and opinion leaders of the world, and authored more than a dozen books. वो किताब बहुत पे लिखे हैं, God is a person, ये सब बहुत साइंटिफिकली लिखे हैं। He also launched the University of Bhagavad Culture in Imphal, Manipur, promoting education with a human experience and values through Manipur art and culture tradition. Started several schools in Northeast India and guided thousands of students towards a nobler purpose of life, and was one of the founding members of the United Religion Initiatives, a worldwide body committed to interreligious harmony and peace through societal development. His work knew no bounds. Through his intellectual humility, he could win the hearts of top scientists and opinion leaders through constructive
non-argumental, open-minded dialogue and could organize large conferences with bare minimum resources. Here we recall an episode at a nanotechnology conference in June 2004 at Mumbai. Dr. Singh was one of the invited speakers and we are not completely familiar with the theme of the conference. As he began his talk, he expressed his ignorance on his new growing field with utter humility. Normally, had it been any other speaker in his place who is also not familiar with the subject, he or she would have spoken something superficial at surface level to impress the august audience. Honestly देखिए कितना humble and honest है कि मैं नहीं जानता हूँ उसे बोला. But here was Dr. Teddy Singh who praised the achievements of the scientists in this field. Gradually he opened up and cautioned them with some risk factors, especially in the area of ethics, roles and responsibilities. So he was honest here about the strength where he can opine his views in relation with peace. He termed them as nano ethics and expressed his concerns for the following. A concerns related to patents, cease from copying of new products by competitors, increase in use of technology in defense or weapons, misuse of technology by some individuals with vested interest, fear that nanorobots design will make copies of themselves and wipe out the entire biosphere. He arrived at the point that any new area, when explored, must be evaluated and studied from all angles systematically for its pros and cons. Although ignorant of the subject, with humility and wisdom, we won the minds and hearts of scientists who participated in the conference. The heartfelt tribute to Dr. Singh by renowned Nobel laureate speaks volumes about Farmer's noble qualities. Here we recall one tribute by Sir Richard Ernest, Nobel laureate in chemistry. क्या बोलते हो? Dr. T.D. Singh represents for me a perfect role model how in particular academics should think, feel and behave. He has bridged the gaps between science and philosophy and between different schools of thoughts. He showed us what the humanness is. He showed us to what wisdom and compassion really mean. Let us keep spirit alive. Let us not forget him as a role model and improve our own being. A Nobel laureate बोल रहे हैं. Richard Ernest. During his final phase, Dr. Singh also set a precedent by leading a peace march after he was injured during the bomb blast on August 16th of 2006 at Imphal, Manipur. Actually, मणिपुर में इम्फाल में उस समय में बहुत सारा मिलिटेंट एक्टिविटी चलता रहता था. तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. ये महाराज जो वो मंदिर जो है, इसका मंदिर मणि मंदिर बोल के, मणिपुर का मणि मंदिर, तो महाराज ने वहाँ पे बनाया इसका. ये इम्फाल का एयरपोर्ट का नजदीक में है. तो आई वाज देयर इन 96 to 99. उस टाइम में मंदिर हुआ नहीं था, बट आफ्टर दैट ये बना है. और 2006 में 16 अगस्त को वहाँ पे मंदिर का सामने में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था. कुछ लोग बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, उससे कुछ लोग भी कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ लोग का भी आहत हुआ था. तो गुरु महाराज का ऊपर में कुछ बॉम्ब का जो ये होके गिरा था थोड़ा सा, एंड ही वाज लिटिल बिट इंज्योर्ड बट नॉट उनका ये नहीं हुआ था, बट इंज्योर्ड हुए थे. तो उसका बाद में उनको बहुत दुख लगा था कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं एंड लोगों का अंदर में ये जो भक्ति भाव नहीं आ रहा है, पीस का नहीं आ रहा है, एंड इसीलिए वो थोड़ा दुखी हो गए बहुत. उसका बाद में वो दुखी हो गए. उसके बाद में वो वहां से आके वहां पे एक फ्लैट में कलकत्ता में वहां पे भक्ति इंस्टीट्यूट का फ्लैट एक था, वहां पे आके फिर रहे थे कुछ दिन. तो ये 16 अगस्त में 2006 को ये जो वो ये हुआ था. एंड उसी साल में महाराज ने, आई थिंक बिफोर दैट ही टूक ओवर दिस ड्यूटी ऑफ श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी ऑफ बुरलाइस, जो उसका उसी साल में. उसका बाद में शायद इंसिडेंट हुआ एंड उस अगस्त इंसिडेंट, देन वो साइलेंटली रह के भगवान का रासलीला को स्मरण करते हुए वहां पे रहते थे. एंड अक्टूबर इसी समय में जो उनका शरीर त्याग किए थे, तो बहुत कम दिन का बाद में वो जानबूझ के शरीर त्याग कर दिए थे. टुडे एज वी नेविगेट हिज जर्नी which began in the midst of World War II to terrorism with calamities and achievements sandwiched between them, what enthralled was
as was the qualities like excellence and humanness, which Dr. Singh sustained throughout his life. As he rose in life, he received scholarship, global recognition, honor, but he never got disconnected from his humble Manipur roots and could thus carry them along gracefully without becoming victims of pride, arrogance, and greed. Today, Dr. Singh's works can be appreciated very much, especially when we delve deeper into the present age of science and technology. Technology is growing us so rapidly beyond the growth of human's maturity to discriminate farmers' use and misuse. It was observed that while he lived through a moment's association, one would experience a change of heart. उनका साधु संघ में उनका कोई आएगा एक बार साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि होय तो मैं I was very fortunate also to get his darshan at that time in 2006 only before his final departure this ISKCON Bhubaneswar when he came once time and that is my first and last physical darshan with Guru Maharaj and हमारे प्रभु ने मेरे को बुलाए थे महाराज ISKCON भुवनेश्वर में जो आए थे उस टाइम में 2006 में एंड हमको बुला के उनका पास में भेजे थे और हम उनको प्रणाम करके एंड आया तो उसी दिन मेरे को याद आया अभी एक चीज में सीखा नहीं था तो हमारे प्रभु ने मेरे को जो वहां भेजा तो भेजने के टाइम में बोला कि आप प्रणाम करके कुछ दक्षिणा महाराज को दीजिएगा मतलब जो साधु सन्यासी को हम जाते हैं मिलने के लिए तो हम प्रणाम करके खाली जाना नहीं चाहिए रिक्त हस्त में ये बोला गया ना जो भगवान के पास में जाते हैं या राजा का या कोई साधु का पास में जाते हैं तो रिक्त हस्त में नहीं जाना है खाली हाथ में नहीं जाना इसलिए मैं उस टाइम में ये को पता नहीं था 2006 आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग तो प्रभु ने मेरे को बोला कि महाराज के पास में आप जा रहे हो अंदर में दर्शन करने के लिए प्रणाम करोगे तो कुछ लक्ष्मी आप लेके उसको दक्षिणा जैसे देना तो मेरे को उस टाइम में पता चला कि एक साधु हो देन आफ्टर इसको पता चला कि कभी भी खाली हाथ में कोई भक्त को सीनियर भक्त है या ये है या स्पेशली साधु लोग सन्यासी है इनको कभी जाकर ऐसे प्रणाम करके आना नहीं चाहिए कुछ फुल माला लेके जाते हैं जैसे बोलते हैं कुछ लक्ष्मी एंड जो व्हाट एवर कैपेबिलिटी वन इज हैविंग वन शुड ऑफर टू देम एंड ये शास्त्र में लिखा गया है तो इसलिए भगवान का पास में हम जाते हैं खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए साधु लोग का पास में सन्यासी का पास में खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए एंड राजा लिखा गया राजा या उनका पास में भी जो जाते हैं तो यहाँ पे खाली हाथ में नहीं जाना है तो इसलिए यहाँ पे मेरा याद आया वो बात को कि हमको पता नहीं था तो प्रभु ने मेरे को उस दिन जो बताया था उसके बाद में हमको पता चला इसलिए बहुत चीज सीखना है तो ये रिलेटेड एक था तो हम एक ही बार उनको मिला था एंड आफ्टर दैट महाराज ने अप्रकट ले लिए थे तो ये ड्यूरिंग दैट टाइम तो बिफोर अक्टूबर so Dr. T. Singh was so although physically not amongst us today still the shining lamp of Dr. Singh's exemplary life is as a peace ambassador will glow forever so this is कोई लिखे हैं तो attributes उनका तो बहुत पावरफुल डिवोटी श्रील प्रभुपाद का बहुत क्लोज डिसाइपल एंड प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक जाते थे जब महाराज उनका पास में जाते थे उनका रिकॉर्डिंग वो जो मॉर्निंग वॉक में जो बोलते थे महाराज ने उसको उनका स्पीकर पकड़ के उनसे रिकॉर्डिंग करते थे एंड जो कि आज मिलता है ये बहुत अच्छा गाना गाते भी हैं अच्छा भी मणिपुरी कल्चर का जो है ये डांस है मतलब मृदंग वगैरह अच्छा महाराज ने कल्चर को बहुत पकड़ के उनका जो रखे थे और जब भी जहाँ पे भी होता था कल्चर उनको बुला के लाते थे मणिपुरी डांस ट्रूप को लाके फंक्शन वगैरह में उनको बुला के रिप्रेजेंट करते थे इसलिए उनका तो लाइफ में बहुत कुछ डिफिकल्टी किया है उनको पढ़ने के लिए उनका पास में पैसा नहीं था एंड उनका पिताजी गुजर गए थे माताजी को उनको उन लोग भी वहां से लेके दूसरे में शादी शायद करा दिए और उसके बाद में इनका पास इनका एक बड़ी बहन थी तो ये बहुत मुश्किल से अपना जो स्कूल का भी फीस नहीं दे पाते थे एक टीचर इनको स्कूल का फीस दे के पढ़ाए थे मणिपुर में
तो थोबल बोल के जगह एक है। तो हम लोग बाद में जब मैं तो पहले पहले पता नहीं था, तो इसलिए मैं बाद में 2018 को एक बार गया था मणिपुर। तो फिर हम दोबारा जो गए थे आफ्टर द गैप ऑफ 2099 को आया था, फिर 2018 को गया मैंने, तो 19 साल का बाद में फिर जाके तो अब तक महाराज के बारे में थोड़ा सुना था। फिर हम गए थोबल डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ पे जिनका जन्म स्थान है वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे एक मंदिर छोटा सा बना, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेज में थोड़ा सा ये इसमें था, माना छोटा इसमें मंदिर बनाया गया था। और वहाँ पे एक बड़ा पॉन्ड भी था। हम लोग उनका घर के जो जहाँ पे था वहाँ गए थे। उसी घर का पास में थोड़ा सा ये में उसी गांव में एक मंदिर किया जा रहा था और पूजा भी होता था। माना हम जाके वहाँ पे दर्शन करके आए थे। तो एक साधु का आशीर्वाद होने से आज उनका तिरुभाव तिथि में हम लोग उनका चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए एंड उनका आशीर्वाद कामना करते हुए कि हम लोग भक्ति मार्ग में कैसे उनका जो दिया हुआ रास्ता में चलें, शिला प्रभुपाद दिया हुआ रास्ते में चले एंड उनको हम लोग उनका जो डिजायर था टीचिंग टू द यंग एंड एजुकेटेड मासेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कॉन्फ्रेंस करना एंड साइंटिफिकली प्रीचिंग करना एंड लोगों को साइंस एंड रिलीजन का समन्वय जो पैरेलल उसको जो है लेके चलना है, एक को छोड़ना नहीं है। खाली साइंस को देखना है, स्पिरिचुअल को छोड़ना है, ऐसा नहीं है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को पैरेलल करके कैसे आगे बढ़ाना है, तो इसके चलते स्पिरिटन बोल के एक वर्ड कॉइन किए थे, जो स्पिरिट सोल को न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे बोलते हैं स्पिरिटन, तो महाराज ने वर्ड कॉइन किए स्पिरिटन। उनका बहुत सारा किताब है जो लोग साइंटिफिकली स्टूडेंट्स को टीचिंग करना चाहते हैं, साइंटिफिकली वन शुड रीड दोज बुक्स ऑल्सो, हम लोग पढ़ना चाहिए। डॉक्टर जो गॉड इज ए पर्सन का किताब है, तो मोर देन डजन 12 बुक्स, मोर देन 12 बुक्स ही हैज रिटन। साइंस एंड सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन पर में भी लिखे हैं। तो ये सब किताब हमको पढ़ना है और यंग एजुकेटेड मासेस को वो कैसे इसी साइंस का पैरेलली रिलीजन को भी पैरेलली लेना है, कैसे लेना है, उनका किताब पढ़ के उनका लेक्चर सुन के और उनका आशीर्वाद कामना करके हम लोग उनका कृपा से जो सेवा हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आज ये बहुत ऑस्पिशियस डे है एंड एक्चुअली आई थिंकिंग बट आई कुड नॉट अटेंड। आज भुवनेश्वर मंदिर में भी है उनका, बिरला मंदिर में है, लेकिन अभी मेन प्रोग्राम वहाँ पे राधा कुंड में हो रहा है, क्योंकि राधा कुंड में ही महाराज का समाधि हुआ था। एंड ये भी आश्चर्य था, महाराज ने उनका जब शरीर त्याग किए थे उसका पहले हमारे प्रभु बोले थे, एक भक्त को बोले थे कि आप जाओ, आप राधा कुंड में रह के सेवा करिए, हम बाद में आएंगे, ऐसे बोल दिए। तो वहाँ पे एक गोपाल जी का टेम्पल है, मणिपुर राजा गोपाल जी टेम्पल है, तो ये मणिपुर का थे, तो बोल के इनको मणिपुर राजा ने वो टेम्पल को डोनेट कर दिए थे कि आप वो गोपाल जी का, वहाँ पे भी गोपाल है, तो गोपाल जी का जो है सेवा आप करिएगा। तो इसीलिए वो कुछ भक्त कटक में भक्त को बोले थे कि ही वाज थिंकिंग व्हाट टू डू सर्विस, तो उनको सेवा भी दिए थे कि आप जाइए, जाके वहाँ पे उस मंदिर में जाके सेवा करिए। लेकिन वो गुरुमार प्लस माइनस क्या होता है हमको प्रभु ही बताए थे। तो वो बहुत सीनियर भक्त थे, लेकिन वो उनका बात को समझ में नहीं आया उनको, या वो सोचे महाराज क्यों वहाँ इतना दूर भेज रहे हैं, तो हम यहीं पे रह के कटक में एक सेंटर में करेंगे, यहीं पे रहें। तो वहाँ पे कटक में इस तरह का एक सेंटर पहले हुआ था, ये किराए में था, मतलब एक आदमी फैसिलिटेट किए थे। तो उसके बाद में वहाँ पे कुछ भक्त आए थे, धनी व्यक्ति आके मंदिर में भगवान के लिए वहाँ पे कुछ लक्ष्मी दिए थे कि आप इसका ऑर्नामेंट बनाना, लेकिन somehow this devotee didn't do it and नेक्स्ट टाइम वो जो आए थे वो देखे तो उसलिए उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो देन ही डिडंट सपोर्ट। तो कुछ दिन का बाद में वो सेंटर बंद हो गया, मतलब वो जो भगवान का जो यहाँ पे किराए में चलता था वो बंद हो गया। बाद में एक गवर्नमेंट लैंड में भी कुछ किया गया था, तो लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली फिर जो वहाँ पे गवर्नमेंट एक लैंड लेके लोग वो सीडीए में इसका उनका कटक में का अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जहाँ जो संजीव प्रभु का वहाँ पे वाटिका में थे, वो वहाँ पे लास्ट वरुण षष्ठी जो महाराज का जन्म आविर्भाव तिथि लास्ट ईयर का, उसी दिन वहाँ पे शिफ्ट किए थे। तो
वही प्रभु हमको उसी डिवोटी से हम एक बार इसी दिन आज ही का दिन में शाम को आफ्टर दिस प्रोग्राम इन राधा कुंड हम बैठे थे हमारे प्रभु का रूम में वहां पे राधा कुंड में वो डिवोटी बैठे थे। उसका वो जाने के बाद में मेरे को प्रभु ने यही बताया था कि गुरु पूरा उनका दृष्टि मतलब वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं जिसे भगवान जानते हैं ना, तो इसलिए वो बोले थे। लेकिन ये डिवोटी उतना सिंसियर नहीं लिए, तो इसलिए उनका लाइफ में भी भक्ति में जितना ट्राई किए थे अपना हिस्से से कटक में डेवलप करना हो नहीं पाया। महाराज ने बोला कि आप जाइए जाके मणिपुर माने वहां पे राधा कुंड में करिए। ये कुछ पॉइंट्स उनका रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या सीखने क्या है। तो इसीलिए ही डिडंट अंडरस्टैंड इट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ही डिडंट फॉलो इट। अपना हिस्से से बोला नहीं नहीं मैं महाराज मैं कटक में करूंगा। और उसके बाद में कटक में वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। एंड दैट डिवोटी इज वेरी सीनियर डिवोटी थे, लेकिन उनसे बहुत कुछ हो नहीं पाया। तो ये मैं उस दिन मेरे को प्रभु ने बताया था, मैं सुन के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था और ये सुना कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। उसी से उनका कहने का क्या था कि आप जाइए मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। मतलब महाराज जाके वहां पे समाधि लेंगे तो महाराज को ये पता था कि आई वांट टू टेक रेस्ट है। हाँ समाधि तो होगा कहाँ पे राधा कुंड जो कि सबसे हाईएस्ट प्लेस इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम लोग जहाँ पहले भी डिस्कस किए थे लेकिन पता नहीं लोग बोलेंगे कि हम भूल गए, बट एनीवे आई वांट टू रिपीट इट। सबसे हाईएस्ट प्लेस वृंदावन का ऊपर में गिरी गोवर्धन, उसका ऊपर में जो टॉप प्लेस में है राधा कुंड। तो इसीलिए पहले जैसे बोलते हैं वृंदावन ये द्वारका द्वारका वैकुंठ का ऊपर में अयोध्या धाम ये टॉप मोस्ट एमंग ऑल वैकुंठस। देन उसके बाद में मथुरा धाम, सॉरी माने द्वारका बाद में मथुरा का ऊपर में अगर एलिवेशन में देखते हैं तो स्पिरिचुअली मोर पोटेंट है। तो ये द्वारिका मथुरा, देन मथुरा का बाद में वृंदावन में भी अगर ढूंढेंगे पूरा 84 कोस लैंड है वृंदावन है। उसमें इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा है स्पिरिचुअली? गिरी गोवर्धन का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस को क्या है स्पिरिचुअली? राधा कुंड। और राधा कुंड में हाईएस्ट मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जाता तो राधा कुंड ही है। और राधा कुंड में महाराज ने चाहे थे उनका समाधि वहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक डायरी में लिखे थे, लेकिन वो डायरी को कोई नहीं देखे थे। तो उनका शरीर जो त्याग कर दिए, मणिपुर का कल्चर में ये है कि कहीं पे मणिपुरी आदमी अगर अच्छा कोई भी कहीं पे भी रहता है, उनको लाके उनका समाधि अगर कुछ करना है तो मणिपुर में करें। तो इसलिए मणिपुर का उस टाइम में मणिपुर का जो गवर्नमेंट है उस टाइम में इनको लेके कलकत्ता से इनका शरीर को लेके वहां पे जाने के लिए प्रिपेयर कर चुके थे। उसी टाइम में कोई आदमी ने उनका महाराज का डायरी को देखा। वो डायरी में महाराज ने लिख दिया था कि मेरे को राधा कुंड में लेकर ये समाधि करना है। तो देन दे चेंज द प्लान, दे टुक दिस फ्लाइट टू दिल्ली से फिर इनको प्रोसेसन करके फिर राधा कुंड लिया गया था। राधा कुंड में जाके वहां पे समाधि किया गया। और 2006 से 2016 को आई थिंक या रिसेंटली 5-7 साल पहले, हाँ मैं भी 10 इयर्स के बाद में वहां पे एक बड़ा मंदिर समाधि मंदिर है जो गोपाल जी का कॉम्प्लेक्स है मंदिर है, उसी का बैक साइड में है। एकदम राधा कुंड का एकदम किनारे में एक गोपाल जी मंदिर है जो उनको महाराज ने दिए थे मणिपुर का राजा। तो उसी मंदिर में का पीछे में ही महाराज का समाधि हुआ था और अभी समाधि मंदिर वहां पे किया गया है। तो दी प्लेस इज वेरी बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि वहां पे जगह नहीं मिलता, लेकिन राधा कुंड में उस टाइप का प्लेस में एकदम राधा कुंड का तट में है। तो जो गए होंगे लास्ट टाइम तो दे माइट हैव लाइक श्वेता प्रभु वगैरह देखे होंगे। हम लोग इसको मिस करना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हम भक्ति में बढ़ने के लिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक साधु का आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि है और उनका फंक्शन में अटेंड करना चाहिए, उनका आशीर्वाद कामना करना चाहिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ये सब उनका कृपा, देन हम उनको कृपा मिलेगा। तो इसलिए वहां पे वो समाधिस्थ हुए थे। तो बट इसी से सीखना मिला है कि गुरु जो बोलते हैं, गुरु का डीजा कैसे काम करोगे, सेवा करोगे तो वन बिकम सक्सेसफुल। इफ यू डोंट डू लाइक दैट देन विल बी अनसक्सेसफुल, यू विल बी ऑफ नो यूज फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे गुरु का बात मानने से क्या होता है, नहीं मानने से क्या होता है।
तो गुरुदेव ने वहां पे जाके समाधि होंगे बोल के उसका मतलब इनडायरेक्टली बोल दिए थे कि आप पहले जाके वहां पे रहिए, सेवा करिए, उस डिवोटी को बोले, कटक का डिवोटी, और बाद में हम आ रहे हैं वहां पे। इनको समझ में नहीं आया बाद में आ रहे हैं मतलब क्या है, तो बाद में आ रहे हैं मतलब वो जाके वहीं पे रेस्ट लिए फाइनली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम इसीलिए बार बार सबको इसमें बोलते रहते हैं कि भाई गुरुदेव का बात को हम सीरियस लें, कभी भी गुरु का वर्ड को डाउट नहीं करना है, गुरुदेव का प्लस माइनस नहीं देखना है। तो हम लोग को गुरुदेव का, क्योंकि हम लोग जिस लेवल में है गुरुदेव को गुरुदेव मानते ही नहीं, मतलब वी कैन नॉट थिंक दैट ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ भगवान का एक अवतार बोला जाता है जैसे, तो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ, ही इज वेरी स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड हमारा जो है पथ प्रदर्शक है, हमारा गाइड है, हमारा सब कुछ है, हमारा फादर है, एक्चुअली ही इज आवर फादर। तो हमारा जो फादर पैदा किए हैं वो बायोलॉजिकल फादर उनसे बहुत बड़ा पोजीशन में है, जो गुरुदेव स्पिरिचुअल फादर। तो हमारा गुरु महाराज बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल अंकल, इनको सबको इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रेस्पेक्ट देना है। तो एनीवे, तो इसलिए हम सारे गुरु को, प्रभुपाद का जो डिसाइपल ऑथराइज जो भी गुरु है सिस्कन का, सारे को हम लोग प्रणाम करते हुए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, तो कोई किसी से कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। तो they have dedicated their whole life to the satisfaction of Srila Prabhupada। उनका पथ प्रदर्शन, उसका रास्ते में चले, उनका अपना लाइफ बोल के पर्सनल लाइफ कुछ रखा नहीं है, टोटल लाइफ को उनको गुरुदेव का पास में सरेंडर करके कृष्ण के लिए उनका लाइफ को सरेंडर कर दिया। तो इसी के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, आज थोड़ा सुन पा रहे हैं, आज थोड़ा जो बारे में भक्ति का बारे में जान पा रहे हैं, उन्हीं लोग का कृपा से, उन्हीं लोग का जो डेडिकेशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो दिया हुआ ब्लड है, जिसके चलते हम आज उनको एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग एंजॉय नहीं करके सेवा करना चाहिए, लेकिन वी आर sitting, I'm thinking about myself. Yesterday also I was reflecting that nothing, I could not do much thing in this process. तो उनका आशीर्वाद से जो भी है थोड़ा सा कुछ सेवा कर पाए, तो उनका आशीर्वाद कामना करते हुए, गुरु महाराज का आशीर्वाद, सब वैष्णव का आशीर्वाद कामना करते हुए, एंड कैसे उनका सेवा में हम लोग, उनका जो डिजायर था उसको थोड़ा कुछ डिग्री में फुलफिल करने के लिए अगर सेवा कर पाए श्रील प्रभुपाद का मिशन में, सो दैट विल बी ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर साइड एंड दिस इज हम्बल अटेम्प्ट फ्रॉम आवर साइड। तो दिस इज वेरी दिस थिंग्स आज उनका बारे में हम लोग श्रवण करना था। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू, आप कोई उनका गीता पढ़ना है, नितेश प्रभु एंड उनका सब अच्छा किताब है, साइंटिफिकली छोटा किताब लिखे हैं, बट वो साइंटिफिकली बहुत कन्विंसिंग है। इसलिए स्पिरिचुअल को कैसे साइंस के साथ में पैरेलली बढ़ाना है, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। नितेश बाबू, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत ही ऑस्पिशियस इम्पोर्टेंट डे है, मतलब महाराज का प्रभाव तिथि तो 2 अक्टूबर, और प्लस आज के क्लास में मतलब उनके लाइफ से भी बहुत कुछ मिला, मतलब सीखने के लिए। प्लस और जो आप बोले कि जब भी मिलते हैं मतलब महाराज या कभी भी उन सबसे मतलब बड़े इससे जाते हैं तो खाली हाथ मतलब नहीं जाना चाहिए उनके पास। तो ये मैं पहले मतलब कुछ समय से मैं नोटिस किया, तो मतलब ये कुछ दिन अभी नहीं, मतलब पहले ही मैं देख लिया था कि जाते हैं कुछ लोग, कटक में भी और दूसरे में भी, कलकत्ता में भी एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं वहां पे गया था, तो मैं देखा कि एक डिवोटी आया, किसी घर में ही प्रोग्राम था, तो उसमें गया था। तो देन जब प्रीचिंग हुआ, प्रीचिंग के बाद वो जा रहे थे, तो देन मैं देखा मतलब भाई लोग का प्रोग्राम था, तो देखा कि एक डिवोटी आए, देन जाने का कुछ लक्ष्मी मतलब उनके हाथ में दे करके चले गए। तो फिर तब मुझे उस दिन लगा कि मतलब इतने हाई लेवल के डिवोटी और वो सबसे मिलते हैं, तो कुछ लक्ष्मी वो उसी को यूज करते हैं। मैं देख रहा था कि वो फिर अरेंजमेंट करा रहे थे बाकी
सब लोग को घर पहुंचने का, पहुंचे कि नहीं, कुछ माता जी थी उनके लिए गाड़ी का ये था। तो हम लोग जो अमाउंट, वो कुछ भी नहीं है, मतलब जो लक्ष्मी है, लेकिन वो इतना बड़ा चीज करते हैं हमारे लिए वो चीज। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मैं मतलब कटक या फिर उधर भी जब भी गए, भुवनेश्वर गए, वहाँ पे प्रोग्राम जब भी होता था देखते थे कि कुछ कुछ डिवोटी जब भी मिलते थे तो कुछ न कुछ लक्ष्मी देते थे। तो ये एक बड़ा चीज मिला, कुछ भी मतलब खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा महाराज का जो मन था, इंस्ट्रक्शन था, तो वो फॉलो नहीं हुआ उस टाइम, जो जो वो बोले, मतलब तो वो कुछ तो सीनियर डिवोटीज हायर लेवल के महाराज लोग कुछ ऐसा बोलते नहीं है, बस एक बार ही बोलते हैं कि वो चीज है, उसके बाद दूसरे वो चाहते थे वहां जाए, लेकिन ये बोल कटक में बोले। तो वही चीज है कि तो फिर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहते हैं, तो उसमें पावर होता है। तो फिर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम ऐसा चाहते हैं, तो वो देखा हूँ कि मना नहीं करते हैं कि ठीक है आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है आप कर जाइए, लेकिन ये कर लीजिए। लेकिन वो एक बार बोल देते हैं कि स्ट्रांगली, मतलब ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा होगा, ये चीज अगर यहाँ पे होगा तो बेहतर होगा। आप फिर आप जो ही आप बोलेंगे कि नहीं हम ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हो जाए, जो ही क्वेश्चन हो गया तो देन वो बोलते हैं ठीक है आपको ऐसा, तो फिर लेकिन वो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाता है। तो वो चीज है कि जो भी बोले तो विदाउट क्वेश्चन, विदाउट डाउट उसको मतलब फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा टीचिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी करना। थैंक यू। उसमें रिलेटेड और थोड़ा पॉइंट ऐड कर देता हूँ। उसमें होता था एक्चुअली अभी जो मणिपुर मंदिर या जो भी अभी फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन में मणिपुर उसके बाद में वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे बोल के डिवोटी, महाराज ने उस मंदिर का जो सभा है गोपाल जी का, मणिपुर का डिवोटी को दे दिए थे। पहले ऑप्शन दिए थे कटक का डिवोटी को, बाद में वो नहीं मना, राजी नहीं हुआ तो मना किया, तो फिर उसको दे दिए। हाँ, तो उसका बाद में ये इंटरनल बात है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो फंक्शन होता है वो फंक्शन एज बिकॉज दिस वहाँ पे होता है, तो ये मणिपुरी डिवोटी लोग सब करते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें प्रभु वगैरह उस सेवा में एंगेज ज्यादा नहीं हो पाते हैं। उनका जिसे स्टाइल में करना चाहिए, मैं देखा है एक बार ऐसे हुआ था कि तो उस टाइम जो नया विग्रह हुआ था महाराज का, तो उनका जो चश्मा है, ये लोग चश्मा नहीं लगाए थे। तो उस दिन हम बैठे थे वहां पे, डिस्कस हुआ, और संजीव प्रभु ने, हमारे प्रभु ने, तो फिर वो बोले नहीं महाराज का चश्मा नहीं लगाए लोग। तो फिर वो लोग खरीद के एक चश्मा लेके फिर आए। तो बिकॉज सम पीपल नो द मूड ऑफ टीचर वेरी मच। इसका बाद में बहुत से इस तरह का सिस्टम है, मैं बोलना नहीं चाहिए। तो उनका अमय प्रभु और संजीव प्रभु, इनका मन हृदय में बहुत दुख है कि हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, हमारा जैसे करना चाहिए हमारे हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज नाउ तिरुवाप तिथि एवरी ईयर इज बिंग टेकन केयर लीडेड बाय दैट मणिपुर डिवोटीज। तो प्रभु ने वहां जाकर रहते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन वहां पे एक फीस्ट जो होता है ना, तो 1.5-2 किलोमीटर दूर में एक जगह में बड़ा बड़ा इसमें फीस्ट करते हैं लोग, लेकिन डिफरेंट वैरायटीज करते हैं ऑल दिस, लेकिन बहुत दूर में है। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में होता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन स्पेस एंड ऑल दिस। तो फिर हमें प्रभु ने फिर एवरी ईयर से संजीव प्रभु मिलके पास में एक मठ है, वहाँ पे अलग से प्रसाद करते हैं 200 लोग का। उसमें वैष्णव या ब्राह्मण लोग को बुलाते हैं, 108 ब्राह्मण, एंड वहाँ पे उनको फिर उनका हिसाब से दान दक्षिणा देते हैं, करते हैं, पूरा करके अलग से प्रसाद करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं आप इतना दूर नहीं जाना है, यहीं पर प्रसाद पा लो। तो एकदम राधा कुंड का पास में है। तो दिस इज इंटरनल थिंग्स, बट जस्ट आई वांट टू एक्सप्रेस फ्रॉम माय हार्ट है। तो आप देखिए क्या होता है रिफरकेशन महाराज का, या शुद्ध भक्त का बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो खाली वो नहीं सफर करते हैं, उनका बाद में भी बहुत लोग है उसका रिपरकशन को फील करना पड़ता है। नितेश जी, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। इसीलिए ना हम लोग कहना नहीं चाहिए, बार बार हम बोल रहे हैं,
हम लोग मतलब बहुत बहुत छोटा पर्सन है, हम लोग को भक्ति में कुछ पता ही नहीं है। एंड हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग पता है चल गया सब कुछ, देन मुश्किल हो गया। हम कुछ ही नहीं जानते, हमको कुछ पता ही नहीं है। एंड इसीलिए बोलता हूँ कोई सीनियर भक्त से सरेंडर होके उनका देन आपको समझ में आएगा। नहीं से नहीं जाए प्रणिपातना परिप्रश्न सेवया। आप जब एक अनकंडीशनली, जैसे भगवान को तो दूर का बात है, कोई एक सीनियर डिवोटी को या परंपरा में होते हुए गलत हो भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर अनकंडीशनल उनको सरेंडर करते हैं तो आपको भगवान सही रास्ता दिखाएगा। वो आदमी गलत हो सकता है, आदमी गलत रास्ता बोल सकता है, सो आपको लगता है कि गलत है, नहीं, लेकिन आपको हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, आपका हृदय में रियल चीज को प्रकाश हो जाएगा। तो हम तो प्रभु का पास में जो है ना बहुत कुछ सीखना मिला है हमारे टीचर से एंड ऑल दिस थिंग्स से। एंड मेरे को ये एम्फासाइज हो गया, मैं जो सुना था हमारे टीचर से उसको इतना एम्फासाइज हुआ है प्रभु से मिलने का बाद में, क्योंकि ये प्रिंसिपल को सही ढंग से फॉलो करते हैं। And then I was able to understand that what is the repercussion of following the instruction of spiritual master and not following it. मतलब बहुत सीरियस है। तो हम लोग का लाइफ कहीं से भक्ति में इतना आसानी से, जैसे वाले सिंपल पर्सन के लिए सिंपल में बढ़ जाता है, आराम से हो जाता है। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड माइंड पर्सन किसको बोलते हैं? जो सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन कौन है? जो गुरु का बात को मानता नहीं है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। और जो सिंपल पर्सन कौन है? जो गुरु का बात को विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट डाउट उसको ग्रहण करता है। ये डेफिनेशन ऑफ ए सिंपल पर्सन एंड डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। कल आप बोल रहे थे ना जो सिंपल पर्सन सिंपल क्या है ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप बोले मैं नहीं, मेरा टीचर बताया। ये शिला प्रभुपाद का बता हुआ है चीज को। शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता का ट्रांसलेशन परपट में दिया है इसको। आप पढ़िए चैप्टर 13 का 8 to 12 श्लोक में सिंपलिसिटी जहाँ पे लिखा है एंड एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर इज आउट ऑफ 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। आप देखिए पढ़िए। तो इन दैट सेंस आप देखेंगे ये महाराज के पास में सारे जो 20 आइटम्स देखेंगे, 26 क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी सारे था। एक एक क्वालिटी को आप पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे, उनको अगर हम सुने होंगे, उनसे मिले होंगे और